Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, Vanakkam, Pranam, and hello, this is Ravikant Sharma and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to cover a new topic and this video is continuation part of my previous video. In my previous video, I had covered the concept of finding electric field due to charge disk. I had announced that in the next video I am going to cover Gauss theorem. But before introducing the concept of Gauss theorem, I would like to introduce the concept of electric dipole. After covering electric dipole and finding the electric dipole related electric field equations, that is electric field along the axial point of electric dipole and electric field along the equatorial point of the electric dipole, then we will cover the concept of Gauss theorem. सो पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियो, द description of that video is already given in the description box and you can go and click on it. One more thing I would like to add, that the last expression of my previous video, if you remember, the electric field due to charge disk that we had derived was this one: E equals to 2k sigma x pi 1 by under root x minus 1 by under root x square plus r square. If you haven't gone through that video, you can go. But I would like to add some correction. That correction is, you have to use here square. Right? This is a small correction that you can write it down in your notebook. Why I have added under root square? Because we had taken a limit from upper limit minus lower limit. In a case of upper limit, I had substituted the value of capital R in the place of small r, and in the place of lower limit, I have to suppose, I have to substitute 0 in the place of small r. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा. तो वो वैल्यू जब आप छोटे से r के अंदर आप 0 रखोगे तो इट विल बी एनीवेज अंडर रूट x स्क्वायर. तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है. तो ये छोटा सा करेक्शन है, आप लोग कर लीजिएगा. और लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इलेक्ट्रिक डाइपोल. What is electric dipole? See, dipole means we are talking about two different polarities. Okay, दो different polarities के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. मतलब अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, such as positive charge and negative charge, considering that they are having a equal magnitude, right? Suppose अगर मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है. अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. जैसे मान लो कि इसके पास 1 माइक्रोकूलम है, दूसरे वाले चार्ज के पास -1 माइक्रोकूलम है. तो दोनों का मैग्नीट्यूड देख रहे हो सेम है एंड पोलैरिटी दोनों की डिफरेंट है. तो वी कैन कंसीडर एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट द चार्जेस विद हैविंग an equal magnitude but opposite polarity. Right? You can write it down that electric dipole is, it's a charge of equal magnitude but different polarity. पोलैरिटी मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट, उनके ऊपर जो नेचर होगा, उन चार्जों का वो डिफरेंट होता है, ठीक है. इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनका नेचर चेंज हो जाएगा. अब एक और कॉन्सेप्ट है इसके बाद हमें समझना है, that is electric dipole moment. What is electric dipole moment? Electric dipole moment. बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे समझेंगे? एक और चीज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. It is represented by P with a vector sign.
means electric dipole moment is a vector quantity. What is electric dipole moment? सिंपल सा समझो तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट मीन्स आपके पास दो चार्ज हैं, मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, दोनों का सेम चार्ज है बट नेचर उनका डिफरेंट है, मीन्स पोलैरिटी उनकी डिफरेंट है. इफ दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, if they are separated by certain distance, then entire combinations we can call it as a electric dipole moment. I'm repeating it again. Suppose आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी चार्ज सिमिलर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट उनका नेचर डिफरेंट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस और लेट्स से अ सर्टेन डिस्टेंस, देन एंटायर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वी कैन डायग्रामेटिकली शो इट एज, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अब इनको दोनों को अगर कोई भी सर्टेन डिस्टेंस पे आपने सेपरेट कर दिया, लेट्स से x डिस्टेंस पे आपने सेपरेट कर दिया, अब इनके पास प्लस q चार्ज है यहाँ पे इनके पास माइनस q चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, पोलैरिटी इनकी डिफरेंट है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन बी गिवन एज p इज इक्वल टू, दैट इज डाइपोल मोमेंट, p का एक्सप्रेशन, p इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद हैविंग अ वेक्टर साइन एंड व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मींस चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. कई बार देखो किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि इंस्टेड ऑफ x लिखा जाता है 2a. सपोज करो 2a दिया हुआ है, ठीक है, तो 2a भी डिस्टेंस ही है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाएगा कि डाइपोल का यू हैव इलेक्ट्रिकल डाइपोल विद चार्ज 1 माइक्रो किलो एंड -1 माइक्रो किलो, ठीक है, चार्ज दिया है आपको पास 1 माइक्रो किलो, मतलब इनडायरेक्टली आप ये सपोज करके चलो कि आपके पास चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी डिफरेंट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय लेट्स से 1 मीटर. अब उस केस में कई बच्चे गलतियां क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि q इक्वल्स टू 1 माइक्रो कूलम है, एंड इस डेफिनेशन के हिसाब से लेट्स से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मैंने 1 मीटर. तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन p इक्वल्स टू क्या होता है, p इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये हुआ. अब बच्चे ये करेंगे, फॉर्मूला अगर ये रख लिया चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2a, तो मैंने क्वेश्चन में दिया है द चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस की वैल्यू मैंने दिया 1 मीटर, तो ये लोग वैल्यू ये रखेंगे 1 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 मीटर. बात समझ में आ रही है? तो बच्चे ये लिखते हैं p इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 कूलम मीटर. ये गलत आंसर है, याद रखना, ये गलत आंसर है. क्यों? बिकॉज एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन ये कहता है कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय अ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. तो ये मत समझना कि अगर कोई किताबों में 2a डिस्टेंस दिया है तो 2a मतलब आप फॉर्मूला में भी 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे आप डिस्टेंस सपोज करके चलोगे और वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, ऐसा नहीं होता, ठीक है. This 2a stands for distance between two different charges. That's it. ठीक है? So you can define it as a electrical dipole moment as the two equal charges with having a opposite polarity. If they are separated by a fixed distance, that is called electrical dipole moment. Or electric dipole separated by fixed distance called electric dipole. Electric dipole moment. ठीक है? Electric dipole moment. Electric dipole moment is represented by letter P. अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? अगर आप रिकॉल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन था. इट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. मींस पॉजिटिव चार्ज है तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रेडियली आउटवर्ड. अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड. बट इस केस में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा या फिर कोई भी केस हो, इफ यू हैव अ डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज taken from negative charge to positive charge. Direction of P is taken from negative charge to
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज अ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फाइनली आप ये भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो से दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is opposite to electric field. ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, मतलब और कौन से पॉइंट आप ऐड कर सकते हो? We can add the unit of dipole moment. What will be the unit of dipole moment? As I have just discussed, that dipole moment is charge multiplied by distance between them. तो unit will be, charge का unit क्या होता है बेटा, कूलम, और distance का unit होता है मीटर, तो unit will be कूलम मीटर। ठीक है, तो dipole moment का unit आप लिख दीजिए, that is कूलम मीटर। Unit of electric dipole moment, unit will be कूलम मीटर। ठीक है, और डायमेंशन इसका क्या होगा, बहुत सिंपल है, कूलम का होता है। डायमेंशन फॉर्मूला यू कैन सिंपली फाइंड इट आउट। कूलम का क्या होता है बेटा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम, और मीटर का होता है लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L1 T1 A1, M0 L1 T1 A1, this is the dimension formula of dipole moment। ठीक है, तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए तुरंत। वीडियो पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो। बस यहां पे एक ध्यान रखना बेटा, अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर चार्ज अगर के बीच में जब बुक में आपको ऐसा लिखा जाएगा कि Q मल्टीप्लाई बाई 2A, तो ये कंफ्यूज मत होना कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस विथ 2। ठीक है, 2A को हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब फर्दर एक और एक्सप्रेशन जो हम डिराइव करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल मोमेंट, तो उस केस में 2A को हम लोग यूज करेंगे। किस तरीके से A को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और किस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो वहां पे ये 2A का एक्सप्रेशन यूज होगा। ठीक है, एक और चीज, एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि एक इमेजिनरी लाइंस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, देखो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में, दिस लाइन इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। ठीक है, लिख लो। अब इसके बाद एक हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड along the axial point of electric dipole। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल along एक्सियल पॉइंट। ठीक है, कई कई किताबों में ब्रॉड साइड पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रॉड साइड पोजीशन या फिर along the axial point we are going to determine the electric field। एक्सियल पॉइंट मतलब क्या होता है, अगर ये डाइपोल एक्सिस है, इसी के पैरेलली अगर एक एक्सिस मैंने बनाया, ठीक है, इसी के पैरेलली अगर मैंने एक एक्सिस बनाया, so that axis is called axial line।
ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल एक्सिस पे आपको क्या करना है कि कोई भी इंडिविजुअल एक्सिस पे एक पॉइंट बना दो और वहां पे ये दोनों डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर एक समझा रहा हूं कि इफ यू आर ड्राइंग अ लाइन, इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड योर axial line, and if you are drawing a imaginary line through the midpoint of dipole axis, that is called equatorial line. So this line is called equatorial line, and this imaginary line which is passes parallel to the dipole axis, this is called axial line. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सियल पॉइंट। ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है, और उसी में आप ये सारी चीजें लिख सकता हूँ। एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। चलो, तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर इलेक्ट्रिक फील्ड of this expression, electric field due to electric dipole along the axial line. और next video में we are going to cover the electric field due to electrical dipole along the equatorial line. ठीक है, तो ये जो मैं डेरिवेशन आपसे करवाऊंगा, आप आराम से इसको पेन डाउन, इसको आराम से लिखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो slowly and gradually we are going to develop this speed for understanding these all concepts. So let's say we have a negative charge and positive charge, and which are separated by a distance called 2a. याद रखना, 2a is the distance between these two dipoles. I mean one dipole. There is no two dipole. There is one dipole. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेंटर लाइन मैंने बनाया हुआ। सेंटर लाइन में यहाँ से सेंटर ऑफ वन चार्ज टू अनदर चार्ज, जैसे मान लो कि ये सेंटर से इतना डिस्टेंस क्या है, दैट इज a, और यहां से दूसरे चार्ज के सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल है। ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन दिस डाइपोल इज 2a। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये अगर एक्सियल लाइन है तो एक्सियल लाइन पे एक ये वाला पॉइंट है, लेट्स से p पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो ये p पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, उसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। ठीक है, सपोज करो कि ये वाला जो डिस्टेंस है P पॉइंट का, सेंटर से कितना लाई कर रहा है, सेंटर से x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। लेट्स से दिस P पॉइंट इज लाइंग एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से ये P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, बताओ, आप ही मेजर कर लो। P पॉइंट से इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा, दैट विल बी x माइनस a, x माइनस a। ठीक है, उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी x प्लस a, x प्लस a। तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a। यहां तक बात समझ में आ रही है कैसे मैंने किया? अभी वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये आपके पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और P पॉइंट की वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया, x माइनस a, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला पूरा x प्लस, नॉर्मल ज्योमेट्री है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट यहाँ पे है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होता है। Since electric field is radially outward for the case of positive charge, and it will be radially inward for the case of negative charge. तो इसका मतलब ये हुआ कि let's say this is the direction of positive charge, electric field due to positive charge. तो सपोज करो ये हो गया आपका E1, ठीक है, ये हो गया आपका E1। या फिर और सिंपली अगर मैं बनाऊं तो लेट्स से दिस इज द EP मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, EP मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड। तो मैंने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, ये एरो ध्यान रखना बेटा, एरो क्या बता रहा है कि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज।
उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या पे होगा, इट विल बी रेडियली इनवर्ड। ये हो गया ई एन, ई एन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो रेडियली इनवर्ड है, तो मतलब यहाँ पे एरो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। As of now, we are not comparing the strength of electric field. Remember, as of now, we are just trying to understand the direction of electric field due to both the charges. Positive charge की वजह से क्या, कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। और ये आपका एक्सियल लाइन है, ये भी मत भूलना, ये आपका एक्सियल लाइन है, ठीक है। अब एक्सियल लाइन आपका दो तरीके की एक्सिस होती है, कौन से दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, समझ में आ गया। सेंटर है यहाँ पे, O इज द सेंटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्लियर देख रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कौन सा होगा, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछूं तो क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका उल्टा होगा इस वाले केस में, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछूं तो यहाँ पे E इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्लियर दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट राइट साइड में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। Now let's try to determine the actual electric field produced by this electric dipole moment. At which point we are going to determine across the point P. ठीक है? तो by the concept of superposition principle, net electric field is the summation of electric field due to all the individual charges at a given point. तो यहाँ पे जो E net, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E net विच इज इक्वल टू EP प्लस EN, भूलोगे नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही क्या था। अब आपने वेक्टर ऐड किया हुआ है, तो वेक्टर के साथ क्या आता है, डायरेक्शन, याद रखना। जब आप कोई वेक्टर लिखते हो, इफ यू आर राइटिंग ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस डायरेक्शन, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन है। अब यहां पे देखो EP जो आपको दिखा रहा है, EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बात समझ में आ रही है। दिस EP इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड लेट्स से द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट इज P। बात समझ में आ रही है, मैंने P क्यों लिखा, P is representing the direction of dipole moment, and even in our case electric field is along the direction of P vector, I mean P unit vector. So I can write it here EP, अब यहां पे ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, EP प्लस EM, तो E net is equal to EP यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया EP का, और यूनिट वेक्टर यहां पे क्या लगेगा बेटा, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, प्लस EN नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे देख रहे हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट राइट साइड में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो वी कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विथ नेगेटिव यूनिट वेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, P वेक्टर मैंने Q ऐड किया, ठीक है। आप इसको I वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं ये P के टर्म्स में ही क्यों लिखा रहा हूँ, बिकॉज फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे P वेक्टर यूज कर रहा हूँ। You can also write it in terms of I and I cap, I as a unit vector। अगर x axis को आप सपोज करो कि I cap है, तो EP along the positive I direction and EN along the negative I direction, अगर उस वे में भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट
यहाँ पे क्या आएगा बेटा, EP into P vector, unit vector, which is showing the direction of positive charge, electric dipole moment, and minus P is showing the direction of opposite electric field due to negative charge is opposite to the direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे रखा। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फाइनल आंसर आ जाएगा। और एक और चीज यहाँ पे देखोगे बेटा कि इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि इसमें टोटल चार्ज कितना है Q, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे इसके पास माइनस Q चार्ज है। So according to the expression that we had just discussed in the previous topic, कि P, that is electric dipole moment, is equal to Q multiply by 2A। यही तो है expression dipole moment का, charge multiply by distance between them। तो this is the expression of electric dipole moment। ये डायग्राम को देख के क्लियर हो रहा है। अब वैल्यूज रखते हैं। E net is equal to EP P vector, P unit vector। अब EP फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज के बारे में अब देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है KQ by R square। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे Q है, ठीक है, तो इट विल बी KQ by, अब डिस्टेंस इसके बीच में क्या बेटा, x माइनस a, तो x माइनस a का होल स्क्वायर इनटू कौन सा वेक्टर है बेटा यहाँ पे, प्लस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये वाला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का एक्सप्रेशन क्या होगा, KQ by R square। अब R की जगह पे क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस देखो, नेगेटिव चार्ज और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है x प्लस a, ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर विथ माइनस p का। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। अब बस वैल्यूज अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है और थोड़ा इवैल्यूएट करना। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बिकम, देखो P यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो इट विल बी E net इक्वल्स टू KQ भी हम बाहर निकाल देते हैं, KQ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 by x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 by x प्लस a का होल स्क्वायर, और बाहर आ गया P वेक्टर। समझ में आ रहा, P वेक्टर मैंने बाहर निकाला, P इज यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पे बचा KQ x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस a होल स्क्वायर और x प्लस a होल स्क्वायर P यूनिट वेक्टर, ठीक है। x प्लस a होल स्क्वायर और x माइनस a स्क्वायर जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये हमें वापस से वही यूज करना है। तो KQ यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का एक्सप्रेशन अगर आप याद करोगे तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। द सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज इट। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a और x प्लस a का होल स्क्वायर, इट विल बी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर P वेक्टर। आई होप इतना वीडियो में कवर आ चुका होगा। ओके, एवरीथिंग looks good, fine। KQ x square plus 2xa plus a square minus this all expression। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे x square and minus x square will be cancel and plus a square minus a square will be cancel। ये माइनस साइन आप यहाँ पे दे दोगे ना ब्रैकेट के अंदर, तो it will be change। तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, it will be E net equals to KQ 2xa और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वापस से 2x है, इट विल बी 4x है, हो जाएगा 4xa डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर विथ p वेक्टर, ठीक है, विथ p वेक्टर। यहां तक एक्सप्रेशन समझ में आ रही है, हमने क्या किया। अब यहां पे
इस न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे Q और 4 और A, ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ये डाइपोल मोमेंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको ध्यान से, अगर ये न्यूमरेटर को ओपन करें ना, तो देयर विल बी सम चेंज इन द न्यूमरेटर। लेट्स डू इट। E net becomes, E net is equal to K X 2, यहाँ पे Q टाइम्स ऑफ 2A इंटू P वेक्टर डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसे लिख दो 2KX एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब दिख रहा है बेटा ये वाला एक्सप्रेशन, Q टाइम्स ऑफ 2A, Q टाइम्स ऑफ 2A, इट विल चेंज टू डाइपोल मोमेंट P। आपका फाइनली एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज E net is equal to 2kx into p vector, p unit vector divided by x square minus a square का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of electric dipole moment, and this is the expression of electric field due to this electric dipoles along the axial point. अब इसमें एक कंडीशन ऐड कर सकते हो कि सपोज करो आपका ये डिस्टेंस है x, वो x की वैल्यू a के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब x की वैल्यू a के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो, तो यू कैन अवॉइड द वैल्यू ऑफ a। कैसे? फॉर एग्जांपल एक x की वैल्यू 1000 मीटर है और a की वैल्यू मान के चलो 0.000001 मीटर है, तो कंपैरेटिवली यू कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ a। और ऊपर से अगर वो स्क्वायर में हो, तो अगर 0.0001 भी लिखूं और उसका भी स्क्वायर करो, इट विल बी इवन मोर स्मॉलर वैल्यू। तो you can avoid that expression. So you can write it down, if x is more greater than a, so in that case your electric field E net, एक चीज यहाँ पे दे देना कि a is considered to be 0, in that case a will be considered to be 0, so E net becomes 2k p x by, डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो ये तो 0 हो गया, तो x raised to 4 into p कैप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x raised to 4 है और न्यूमरेटर में एक x है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चेंज क्या हो जाएगा, 2kp कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आपसे फाइनल बनेगा 2kp by x। तो ये आपका फाइनल बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अराउंड द एक्सियल पॉइंट। ये एक्सप्रेशन कब यूज करना है बेटा, जब ये कंडीशन हो x is more greater than a, in that case a tends to 0। ठीक है, so this is your general expression of electric field। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है, दे बोथ आर अलाइनिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले केस में when we are talking about electric field due to axial point, so in that case the direction of resultant electric field and electric dipole moment are in same direction। ठीक है, they are aligning along the same direction। ठीक है, तो this is the final expression that I wanted to derive। और एक और पॉइंट है कि what is the general meaning of ideal electric dipole moment। तो ये आप पॉइंट ऐड कर दीजिएगा कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मींस दैट द सेपरेशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अभी जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है बेटा, 2a। सपोज दिस 2a डिस्टेंस इज स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज possessed by each charges, then in that case we can say that that dipole is ideal electric dipole। ठीक है, सो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में इनका जो सेपरेशन है इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बट नॉट जीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल compared to the magnitude of the charges possessed by the individual charges। so that is your ideal electric dipole moment, right। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप आपने स्टार्टिंग से अंत तक पूरा वीडियोस को कवर किया होगा। अगर इन केस अगर आपको लग रहा होगा कि डेरिवेशंस में कहीं पे डिफिकल्टी आ गई, तो एक बार आप कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद खुद से रिप्रोड्यूस कीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो और वी विल meet in the next video
and in the next video I'm going to discuss electric field due to इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट. ठीक है, मतलब अभी हमने एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिराइव करूंगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करते हैं. सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो. थैंक यू. चलो बाय बाय.